look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the... Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today in this video, I am going to discuss next important unit relating to the jurisprudence too, that is law and justice. My question is, what is the administration of justice, and discuss the meaning and kinds of the justice. If we talk about the administration of justice, that is the combination of two words, administration and justice. Here the word administration means management and the justice means right and equitable implication. Thus, the administration of justice means maintenance of rights within a political community by means of physical force of the state. Thus, the state maintains the law and order and establishes the peace and social security. And it is the duty of every state to maintain the law and order in the society. And the administration of justice is the primary function of every state by providing the protection to the individual's rights, by the enforcement of law and punishment of wrongdoer. In general words, administration of justice means justice according to law. Here the term justice means equality of being just. Justice consists of impartiality, rightness and integrity. If we talk about the types of administration of justice, generally administration of justice can be of two types. First is administration of civil justice and the second one is administration of criminal justice. A state may be called a state if it is able to maintain the law and order in the society. Thus, a state which is not able to maintain law and order in the society and it fails to discharge its primary function of maintaining the administration of justice, then we can't call that state a state. Even life is not possible in a society if it fails to protect the rights of the individuals and fails to protect the law and order in the society, fails to maintain the law and order in the society. Generally, there can be two types of wrongs. One is civil wrong, another is criminal wrong. Civil wrongs are the private wrongs, while the criminal wrongs are the public wrongs. I will deal with administration of criminal justice. Administration of criminal justice deals with the public wrongs. So, all the offences which are included in Indian Penal Code are the crimes, and the administration of criminal justice, that is to punish the offender or the wrongdoer, and by punishing the wrongdoer, it is the duty of the state to maintain the law and order in the society. If a state punishes the wrongdoer, that is essential for the state to do so, because the punishment is necessary. That is some kind of pain that is inflicted upon the offender or loss caused to him for his criminal act, which may either be intended to deter him from repeating the same crime, or it may be directed to deform him also. There are the certain theories regarding the punishment which have come from time to time. There are the different views of different jurists. On the basis of their opinions, different theories have been classified. If we talk about the object of punishment is not to prevent the wrongdoer to commit the offense, but also to deter the criminal to repeat the same offense again. That may make an example for him in future. If we talk about the theories of punishment, there are the certain theories regarding the punishment. First theory, that is preventive theory. As per this theory, it believes that the object of the punishment is to prevent or disable the wrongdoer from committing the crime again by disabling him physical power to commit the same offense. So the deterrent theory aims to give warning to the society at large, while the preventive theory aims to disable the wrongdoer to commit the crime by disabling his physical power. And the second theory, that is reformative theory, Sudharatmak Siddhant. This theory believes that the punishment aims to reform the criminal. Even if the offender main object of punishment is not only to prevent the wrongdoer from committing the same offense or the crime again, but also to make him an example for others. If we talk about the various theories of the punishment,
there are certain theories which are given by the various jurists on the basis of their views, regarding the punishment, why the punishment is essential. There are the certain theories, that is, first theory is preventive theory, retributive theory, reformative theory, death penalty theory, as well as expiation theory. These are the certain theories of the punishment which have been categorized on the basis of various views of the various jurists. Theory is preventive theory. This theory believes that the main object of the punishment is to prevent or disable the wrongdoer from committing the crime again by disabling his physical power to commit the crime. Death theory aims to give warning to the society at large, while the preventive theory aims to disable the wrongdoer to commit the crime by disabling his physical power. Second theory is reformative theory. This theory believes that punishment aims to reform the criminal. Even if the offender commits a crime, he does not cease to be a human being. He might have committed the crime under the circumstances which might never occur again. The main object of the punishment should not only to punish the offender, but to reform the offender. The criminal must be taught some art or craft or industry during his life imprisonment, so that he may be able to lead a good life and become a responsible and respectable citizen after the release from jail. Critics of this theory says that if a criminal are sent to jail to be reformed into a good citizen, a prison will no longer be a prison but a dwelling house. But this theory has been proved to be successful for young offenders. And the next theory, retributive theory. In the primitive society, punishment was mostly retributive in nature, and the person against whom wrong was committed was allowed to have the revenge against the wrongdoer. The principle here relating to this theory, that is an eye for an eye, teeth for an teeth. Critics of this theory says that the punishment per se is not remedy for the mischief committed by the offender. It only aggravates the mischief. Punishment in itself is an evil and can be justified only on the ground that it yields better result. Revenge is a vile justice. If we talk about the civil administration of justice, its main object of the administration of justice is to provide the relief by way of compensation or the other relief to the injured party. This theory believes that the punishment should not only be to prevent further crime, but it should also exist to compensate the victim who has suffered the loss due to the wrongdoer. The purpose of the civil justice is the enforcement of civil proceeding. If we talk about the advantages of the administration of justice, first advantage, that is the uniformity and certainty. Legal justice ensures the uniformity and the certainty. Everybody is having the knowledge about the existing law, and he knows that there is no scope for the arbitrary action. Even the judges are also bound to give their decisions according to the declared law of that country. As the law is certain, citizens can shape their conduct accordingly. Second one advantage of the justice, that is impartiality. There is impartiality in the administration of justice. Judges are bound to give their decisions according to the predetermined legal principles and cannot go beyond them. On the other hand, there are certain disadvantages of the administration of justice also. First disadvantage, that is rigidity. Law which has already been laid down in the precedents, it is not always be possible to adjust it to the changing needs of the society. Such justice may result in hardship and injustice in certain cases. And the second one is technicalities, that is formalism. Judges attach more importance to the legal formalism than they deserve. Next one is complexity. Modern society is becoming more and more complicated, so the law becomes complicated very soon. Next one is legal justice is full of formalities. And Salmond says that law is without doubt a remedy for a greater evil.
yet it brings with it evil of its own. That was all about the administration of justice. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसे न्याय प्रशासन कहा जाता है, यहाँ पर प्रशासन का अर्थ प्रबंध एवं न्याय का अर्थ सही एवं न्याय संगत होने से है। न्याय प्रशासन से अभिप्राय राज्य की भौतिक शक्ति के माध्यम से किसी भी राजनीतिक समुदाय में अधिकार कायम रखने से है। न्याय के सुदृढ़ प्रशासन हेतु राज्य की शारीरिक शक्ति प्रमुख मानी जाती है एवं राज्य का प्राथमिक कर्तव्य यह होता है कि वो राज्य में न्याय का प्रशासन बनाए रखे। प्रोफेसर सामंत के अनुसार एक राज्य जो अपने क्षेत्र में पुरुषों के एक समाज के रूप में बल के माध्यम से एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर व्यवस्था एवं न्याय बनाए रखने के लिए स्थापित करता है, राज्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है तथा शांति एवं सामाजिक सुरक्षा स्थापित करता है। यदि राज्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहता है तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। न्याय प्रशासन का मुख्य कार्य व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा, कानूनों को लागू करना एवं अपराधियों को दंडित करने से है। अतः राज्य का प्राथमिक कर्तव्य किसी भी राज्य में न्याय के प्रशासन बनाए रखने से है। न्याय के प्रशासन को परिभाषित करने के लिए 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, राजनीतिक संगठित समाज, राज्य की भौतिक शक्ति एवं वस्तु के रूप में अधिकार का रखरखाव। These are the 3 main factors which are essential for the administration of justice. जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से एक लड़ाकू जानवर है और वो अपने हित और जुनून से प्रेरित होता है। अतः वो समाज में दूसरों के अधिकारों को हनन करने से नहीं रुकता। अतः समाज में यदि उसे सही रास्ते पर रखना है तो उसके लिए हमें एक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और उस शक्ति के बिना समाज में शांति बनाए रखना संभव नहीं होता। समाज में राज्य सत्ता को कभी भी वास्तविक रूप में नहीं लाया जा सकता। उस समाज में सभ्यता प्राप्त करना अति कठिन होता है। यदि हम न्याय प्रशासन की उत्पत्ति एवं विकास की बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो उसे समुदाय में रहने के लिए प्रेरित करता है एवं मनुष्य की ये सामाजिक प्रकृति उसे समाज में रहने के लिए प्रेरित करती है और यहाँ पर समाज में उसके हितों का टकराव होता ही रहता है और उसके हितों का संरक्षण करने हेतु राज्य को न्याय के प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है और इसी राज्य में न्याय का प्रशासन बनाए रखने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है जिससे वो दूसरों के हितों का हनन करने से रुक सकें। अतः विवादों को निपटारे हेतु बड़ों को शामिल किया जाता है और वहाँ अपने मन का विकास देखते हुए प्राकृतिक समाज से लेकर विकसित और सभ्य समाज तक इसे न्याय प्रशासन के विकास का ऐतिहासिक आधार माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब एक बार न्याय के प्रशासन की आवश्यकता पहचान ली गई तो राज्य अस्तित्व में आया। प्रारंभ में राज्य इतना मजबूर था कि वो अपराध को नियंत्रित नहीं कर सकता था और ना ही वो अपराधियों को सजा दे सकता था, लेकिन वर्तमान में इसका संचालन समान प्रकृति के कार्य वाले मजिस्ट्रेटों एवं न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर होब्स के अनुसार समुदाय में लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए एक सामान्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उनका कहना यह है कि जब तक मनुष्य सभी को विस्मय में रखने की एक सामान्य शक्ति के अधीन नहीं है तब तक दूसरों के हितों का संरक्षण करना पॉसिबल नहीं है। अतः न्याय के प्रशासन में एकरूपता एवं स्थिरता, न्याय का प्रशासन कानून में एकरूपता एवं स्थिरता लाता है और ये कानून में व्यवस्थित विकास का कारण भी बनता है। यदि हम न्याय के प्रशासन की बात करते हैं तो न्याय का प्रशासन जनरली 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो सिविल प्रशासन जिसको हम कहते हैं दीवानी, दूसरा होता है फौजदारी। यानी गलतियां जनरली 2 प्रकार की हो सकती हैं, नागरिक गलती एवं आपराधिक गलती। आपराधिक गलती सार्वजनिक गलती होती है जिसको हम पब्लिक रोंग कहते हैं, जबकि नागरिक गलती से अभिप्राय निजी गलतियों से है, प्राइवेट रोंग से है। सिविल न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य घायल पक्ष को मुआवजे या अन्य राहत के माध्यम से उसे राहत प्रदान करना होता है। सिविल कार्यवाहियों द्वारा अधिकार 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होते प्राथमिक अधिकार, दूसरे होते स्वीकृत अधिकार। सेकेंड वन इज आपराधिक न्याय, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। आपराधिक न्याय का प्रशासन अपराधी को दंडित करने से है। सजा को राज्य प्राधिकरण द्वारा दी गई सजा के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके परिणाम को आमतौर पर किसी अपराध के लिए कानूनी रूप से दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर एक बुराई
के रूप में माना जाता है। सजा के सिद्धांतों की बात करते हैं तो न्याय राज्य का एक प्राथमिक कार्य है, अतः इसे आमतौर पर नागरिक न्याय प्रशासन या आपराधिक न्याय प्रशासन में विभाजित किया जा सकता है। आपराधिक न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य गलत कार्य करने वालों को दंडित करने से है। यह राज्य ही है जो अपराधियों को दंडित करता है। प्राचीन काल से ही सजा के उद्देश्य के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिसे हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। सजा एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राज्य अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों या संपत्ति को कष्ट पहुंचाकर देता है। इसके संबंध में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि पहला सिद्धांत है निवारक सिद्धांत। प्रोफेसर सामंत के अनुसार सजा का निवारक पहलू बेहद महत्वपूर्ण है। सजा का उद्देश्य न केवल कुकर्मी को दोबारा अपराध करने से रोकना होता है, बल्कि उसे ऐसे कार्यों के सामने एक उदाहरण बनाना भी होता है मान आपराधिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। मनुस्मृति में भी निवारक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मनु जी के अनुसार दंड लोगों को नियंत्रण में रखता है, दंड उनकी रक्षा करता है, और जब लोग सो रहे होते हैं तो दंड जागृत रहता है। इसलिए बुद्धिमानों में दंड को धार्मिकता का स्रोत माना है। अतः सजा देने का मेन उद्देश्य अपराधी को द्वारा अपराध करने से रोकना ही नहीं होता, वो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं उदाहरण भी क्रिएट करता है। परंतु इस निवारक सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। इसके आलोचना में निवारक सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह अपराधी को रोकने में अप्रभावी साबित हुआ है, और यह भी कि सजा की अत्यधिक कठोरता उन लोगों के प्रति जनता की सहानुभूति जगाकर अपने स्वयं के उद्देश्य को विफल बना देती है जिन्हें क्रूर एवं अमानवीय सजा दी जाती है। हीनियस क्राइम करने वाले अपराधी सजा से नहीं डरते। अपराधी को सजा मिलने के पश्चात सजा की भयावहता खत्म हो जाती है, सजा के प्रति उनका डर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन इज निवारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि सजा का उद्देश्य गलत कार्य करने वालों को दोबारा अपराध करने से रोकना या अक्षम करना होता है। निवारक सिद्धांत का उद्देश्य बड़े पैमाने पर समाज को चेतावनी देना होता है, जबकि निवारक सिद्धांत के तहत मुख्य उद्देश्य गलत कार्य करने वालों की अपराध करने की शारीरिक शक्ति को अक्षम करके उसे आपराधिक गतिविधि द्वारा दोहराने से रोकना होता है। इस सिद्धांत के समर्थक कारावास की सजा को सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रभावी निवारक के साथ साथ एक उपयोगी निवारक उपाय के रूप में भी कार्य करता है। प्रोफेसर पैटन जी के अनुसार निवारक सिद्धांत कैदी पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे भविष्य में दोबारा अपराध करने से रोकने का प्रयास करता है। दंड और निर्वासन एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं, परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि निवारक दंड से पहले अपराधियों या किशोर अपराधियों को कठोर बनाने का अवांछनीय प्रभाव होता है। जब कारावास की सजा होती है तो उन्हें कठोर अपराधियों की संगति में डाल दिया जाता है, अतः यह सिद्धांत भी सही कार्य नहीं कर पाता, अपराध को रोकने में सक्षम नहीं है। एंड द नेक्स्ट सिद्धांत दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। नेक्स्ट वन इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यह सुधारात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत ये मानता है कि अपराधी को सुधारने के लिए दंड का अस्तित्व में होना आवश्यक है। यदि कोई अपराधी गलती भी करता है तो वह मनुष्य नहीं रहता। हो सकता है उसमें ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया हो जो शायद दोबारा कभी घटित न हो। इस सिद्धांत का यह मानना है कि अपराधी को सुधारने के लिए दंड का अस्तित्व में होना आवश्यक है। यदि कोई अपराधी अपराध भी करता है तो भी वह मनुष्य नहीं रहता। हो सकता है कि उसने ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया हो जो शायद दोबारा कभी घटित न हो। दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना होना चाहिए। कारावास की अवधि के दौरान अपराधी को शिक्षित किया जाना, कुछ कला या शिल्प या उद्योग का सिखाया जाना, ताकि वे जेल से रिहा होने के पश्चात एक अच्छा जीवन जी सकें और एक जिम्मेदारी और सम्मानित जीवन जी सके और एक अच्छे नागरिक बन सके, होना चाहिए। परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। इस सिद्धांत के आलोचक ये कहते हैं कि यदि अपराधी को अच्छे नागरिक बनाने के लिए जेल भेजा जाता है तो जेल एक जेल नहीं बल्कि एक आवास गृह बन जाएगा। युवा अपराधियों के मामले में यह सिद्धांत सफल साबित हुआ है। एंड द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। आदिम समाजों में
अधिकतर प्रकृति में अपने के उद्देश्य से होती थी और जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ करता था उसे गलत कार्य करने वाले से बदला लेने की अनुमति थी। यह सिद्धांत था कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। प्रोफेसर होम्स के अनुसार, जस्टिस होम्स के अनुसार यह आमतौर पर ज्ञात है कि कानूनी प्रक्रिया के प्रारंभिक रूप प्रतिशोध पर आधारित थे। सर जॉन सेमंड के अनुसार सजा का प्रतिकारात्मक उद्देश्य अपराधी द्वारा समाज के प्रति किए गए गलत कार्य का बदला लेना है, परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि सजा अपराधी द्वारा की गई शरारत का इलाज नहीं है, यह केवल शरारत को बढ़ावा देती है। सजा अपने आप में बुराई है, उसे केवल इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि इसका परिणाम बेहतर होगा। बदला जंगली न्याय है और प्रतिशोध सजा द्वारा पूरा किया जाने वाला एक प्रकार का सहायक उद्देश्य मात्र है। गांधी जी का भी कहना था कि यदि हम ये कहते हैं कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, ये सिद्धांत यदि चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा संसार अंधा हो जाएगा। अतः प्रतिशोधात्मक सिद्धांत सही नहीं है। अतः सजा प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से नहीं दी जानी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज मुआवजे का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि सजा न केवल आगे के अपराध को रोकने के लिए होनी चाहिए बल्कि उन पीड़ित को मुआवजा देने के लिए भी होनी चाहिए जिसने गलत कार्य करने वालों के हाथों में कष्ट सहा है, जिसने गलत कार्य करने वालों के हाथों कष्ट सहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत अपराधी की दर को रोकने में प्रभावी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराध करने के पीछे का उद्देश्य हमेशा आर्थिक प्रवृत्ति का होता है, आर्थिक प्रकृति का होता है। गलत कार्य करने वाले से पीड़ित को मुआवजा देने के लिए कहने से अपराध की दर हमेशा कम नहीं होगी, हालांकि यह पीड़ित के लिए फायदेमंद साबित अवश्य होगा। तो इसके आलोचकों का कहना है कि यह अपराध के मकसद को अत्यधिक सरल बना देते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। परंतु यदि हम न्याय के प्रशासन के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो न्याय का प्रशासन कानून में एकरूपता और स्थिरता लाने में सहायक होता है और यह कानून के व्यवस्थित विकास का कारण भी बनता है। कानून के नियम समुदाय के सामूहिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसका पालन करने से गलत की संभावना बहुत कम रहती है। पर एडवर्ड कोक के अनुसार कानून का ज्ञान किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से अत्यधिक बुद्धिमान है और न्याय समुदाय के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरी तरफ न्याय के प्रशासन के कुछ नुकसान भी हैं। यह कठोर है एवं समाज में परिवर्तन की दर सदैव कानूनी न्याय में परिवर्तन की दर से अत्यधिक तीव्र होती है। दिस मीन्स वी कैन से दैट इट इज रिजिड। यह बहुत कठोर है और समाज में परिवर्तन की दर सदैव कानूनी न्याय में परिवर्तन की दर से अत्यधिक तीव्र होती है एवं कानूनी न्याय पर तकनीकी और औपचारिक आधारों से भरा हुआ होता है एवं कानूनी न्याय जटिल है और हमारा समाज भी जटिल है। इस प्रकार समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जटिल कानूनों की आवश्यकता है। प्रोफेसर सामंत के अनुसार निसंदेह कानून बड़ी बुराई का इलाज है, फिर भी ये अपने साथ कई बुराइयों को लेकर आता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि न्याय के प्रशासन में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। This was all about the administration of justice. And if you have any doubt, you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further updates. Thank you. 1, 2, 3, 4.